Now we come on the topic of allocation of expenses after calculating time and sales ratio in different manner. Some of the expenses is not divided and transferred to P period only, and some of the expenses is not allocated and transferred to post period, and some on the basis of time and some on the basis of sales. According to instruction given in the question, there are some expenses. Pre-period. Any expenses during period prior to incorporation transfer to pre-period, like interest on capital and expenses related to business. Post-period. Any expenses during period post to incorporation, after incorporation, expenses like expenses related to company, for example, preliminary expenses, director's fees, these are related to post period. On the basis of time, certain fixed expenses, salary, rent, depreciation, interest, printing, stationery, telephone, bank, electricity, administrative expenses, insurance are divided on the basis of time. And on the basis of sales, commission, advertisement, discount, bad debts, carriage outward, packaging, traveling, and other variable expenses. Regarding allocation of expenses, if instruction given in the question, you work out according to question. One of the major doubt area in for allocation of expenses in audit fees. There are several types of audit fees, but in respect of profit pre and post incorporation, we consider only three types of audit: internal audit, external audit, and tax audit. If internal audit given, it is divided into time ratio because business and company both are under internal audit. In respect of tax audit, if tax audit given in the question, it is divided into sales ratio. And external audit, it is related to company only and it is transferred to post expense. It is not allocated pre and post. But in the question, only audit fees is given, then you must note written after in the question, you will assume internal audit or external audit or tax audit, then you take action regarding to your note. Now, this is some problem related to allocation of expenses. Vikas Limited was incorporated 1st August 2020 to purchase a running business 1st April. And accounting year 31st March, rent 24 and salary 30 paid during the year. Allocate rent and salary during pre and post. Rent and salary both are divided into time ratio. Then we calculate time ratio because rent and salary both are fixed nature of expenses. Allocation, rent 24,000 divided into time ratio 1:2, 1/3 and 2/3, 8,000 and 16,000. Salary 1/3 and 2/3 means pre 10,000 and post 10,000. In next problem, here are the expenses, advertisement and commission. Sir, sorry to interrupt. Yes. Sir, sorry to interrupt, sir, because sir, actually some messages in chat box कि you should all explain in Hindi also. Okay. So it will be better. Okay. It is given in the question. Now we'll start English, Hindi and English. In the question, a business purchase from 1st April, 1 अप्रैल को बिजनेस परचेज किया और उसका इनकॉर्पोरेशन कराया 1st अगस्त. और क्वेश्चन में एडवर्टीजमेंट गिवन है 40,000 तो कमीशन गिवन है 50,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर. तो जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि एडवर्टीजमेंट और कमीशन दोनों को हम सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो पहले हम क्वेश्चन की सेल्स रेशियो कैलकुलेट करेंगे. टोटल सेल्स गिवन क्या है? टोटल सेल्स 5 लाख है, आउट ऑफ विच 2 lakh were from the period of pre. Then pre-sales given
2 lakh and post 5 lakh minus 2 lakh 3 lakh. आप 5 लाख में से 2 लाख घटा देंगे तो पोस्ट के लिए 3 लाख बचेगी. तो सेल्स रेशियो आ गया 2:3. अब हम एडवर्टीजमेंट को और कमीशन को दोनों को 2/5 और 3/5 प्री एंड पोस्ट में डिवाइड करेंगे. एडवर्टीजमेंट 40,000 तो प्री पीरियड 2/5 16 एंड पोस्ट पीरियड 3/5 24. और इसी तरीके से हम देखिए कमीशन को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. पहले हम सेल्स रेशियो निकाल लिए और हमें मालूम है कि एडवर्टीजमेंट और कमीशन सेल्स से रिलेटेड है, तो हम सेल्स रेशियो निकाल के उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको. नेक्स्ट प्रॉब्लम, विकास लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस 1 अप्रैल अकाउंटिंग ईयर 30,000 24,000. देखिए ये टाइम रेशियो में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे. रेंट 24,000 है और उसके बारे में दिया हुआ है कि रेंट 1,000 पर मंथ अप टू सितंबर एंड उसके बाद कितना कर दिया गया उसको 3,000 पर मंथ. आपको मालूम है कि किराया जो मकान मालिक है जब चाहेगा बढ़ा देगा, आपको वैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो इस क्वेश्चन में मकान मालिक ने क्या किया है कि किराया बढ़ा दिया. तो सबसे पहले आप रेंट को अप्रैल से सितंबर, देखिए 1,000 पर मंथ अप टू सितंबर है तो हम अप्रैल से सितंबर तक 1,000 लिया. आफ्टर दैट 3,000 पर मंथ मींस अक्टूबर से रेंट बढ़ के मेरा 3,000 हो गया. तो अप्रैल से सितंबर तक हमने 1,000 दिया, फिर 3,000 दिया. अब इसको हमें प्री एंड पोस्ट में एलोकेट करना है. तो इनकॉर्पोरेशन डेट मेरी 1 अगस्त है, तो 1 अगस्त के पहले का रेंट हम टोटल करेंगे 4,000 एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन 20,000. तो इस क्वेश्चन में हमें एलोकेशन टाइम रेशियो में नहीं करना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्री पोस्ट को डिवाइड करना था. तो ये प्रॉब्लम हमारा रखने का मेन उद्देश्य ये है कि हमें हर क्वेश्चन में पहले एक्सपेंसेस को देखना है कि वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. जरूरी नहीं कि सारे एक्सपेंस टाइम और सेल्स में ही डिस्ट्रीब्यूट हो. क्वेश्चन में अगर कुछ हिंट दिया है तो उस हिंट के बेसिस पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए हिंट क्या है? रेंट 24,000, रेंट अप टू 31 सितंबर 12,000 पर एनम एंड it was increased 36,000 per annum after that. देखिए पिछला ही क्वेश्चन है, केवल डिफरेंस क्या है कि पिछले क्वेश्चन में पर मंथ लिखा था और यहाँ पे पर एनम लिखा था, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन बदल गया, जबकि ऐसा नहीं है. अगर आपको हम पिछले क्वेश्चन पे वापस ले चले तो आपको वहां 1,000 पर मंथ, आफ्टर दैट 3,000. तो यहां भी बात वही है कि 12,000 पर एनम है तो कितना पर मंथ हो गया 1,000, और आफ्टर दैट 36,000 पर एनम है तो कितना पर मंथ हो गया 3,000. और इनकॉर्पोरेशन डेट हमें मालूम है 1 अगस्त, तो प्री रेंट 4,000, पोस्ट रेंट 20,000. एलोकेशन हम ऐसे कर देंगे. और ये भी प्रॉब्लम एकदम सेम पिछली प्रॉब्लम की तरह थी, बस यहाँ पर मंथ आपको कैलकुलेट करना था. अब नेक्स्ट देखिए ये प्रॉब्लम, इसमें क्या हुआ, इसमें गिवन है रेंट 24,000, रेंट अप टू 31 सितंबर 12,000 पर एनम, आफ्टर दैट इंक्रीज बाय 200% पर एनम. अब ऐसे देखने में ये भी लग रहा है कि क्वेश्चन अलग है, लेकिन सेम क्वेश्चन है, केवल ये 7th 8th 9th में जो हमें मैथ पढ़ी थी बस उसका यूज किया गया है. इसका प्री एंड पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो जस्ट फॉर कैलकुलेशन. देखिए 12,000 पर एनम है तो 1,000 पर मंथ आ गई. आफ्टर दैट 200% इंक्रीज हो गई. किसकी 200%? 12,000 की प्लस 12,000 का 200% निकालिए तो यानी 36,000 पर मंथ. आफ्टर दैट 3,000 पर मंथ मींस
यहां भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए, पिछले तीनों क्वेश्चन जो मेरे थे 15, 16, 17, दीज आर द आई ओपनर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने केवल इसलिए बनाया था कि तीनों क्वेश्चन में मैं आपको डिफरेंस दिखा सकूं, और तीनों क्वेश्चन का नेट रिजल्ट सेम है। किसी में परसेंटेज लिख दिया, किसी में पर एनम लिख दिया, किसी में पर मंथ लिख दिया, बट रिजल्ट एंड कैलकुलेशन इन सेम है। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम देखिए, इसमें रेंट एंड टैक्सेस 27,000 में, और रेंट अप टू 30th September 12,000, आफ्टर दैट इंक्रीज बाय 200%। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, रेंट एंड टैक्सेस दिया है और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि टैक्स का भी कोई पोर्शन है क्या यहाँ पे, और आपकी कैलकुलेशन एकदम प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है। आप उस तरफ प्री रेंट एंड पोस्ट रेंट आपने कैलकुलेट किया, और आपको पता चल गया कि रेंट आपका 24 है, और रेंट एंड टैक्सेस टोटल 27 था। तो जिसमें से रेंट 24, इट मीन्स कि 3,000 आपका टैक्स है, और उसको हम टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट इज, दिस इज द एलोकेशन। रेंट तो कैलकुलेट हमने कर दिया, मेरा 4,000 एंड 20,000 24। अब ये जो मेरा टैक्स है 3,000, इसको हम टाइम रेशियो वही क्वेश्चन है मेरा 1:2, तो 3,000 को 1/3, 2/3 डिस्ट्रीब्यूट, और ये टोटल प्री और ये टोटल पोस्ट, और दोनों 5 और 22 ऐड करके 27 के इक्वल हो जा रहा है। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, जैसा क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग आपको एलोकेट करना है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें रेंट एंड सैलरी पेड, एलोकेट रेंट एंड सैलरी ड्यूरिंग प्री एंड पोस्ट। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ये आपने कर दिया, एकदम टाइम रेशियो निकाला, रेंट और सैलरी आपको मालूम है। अब यहां देखिए ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ा टेक्निकल है। सैलरी 26,000 पेड आपने किया, देयर वर 3 एम्प्लॉय बिफोर इनकॉर्पोरेशन एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन 5 एम्प्लॉय। तो इसको आप टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके लिए सैलरी का, कि प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड आप कैलकुलेट करेंगे 4 मंथ एंड 8 मंथ। प्री में आपके 3 एम्प्लॉय थे, पोस्ट में 5 एम्प्लॉय थे, तो 4 into 3 12, 8 into 5 40, मीन्स यहाँ रेशियो आपने कैलकुलेट किया 12 और 40 का 3:10। तो ये एलोकेशन हुआ आपका 3/13 एंड 10/13। तो मेरा एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस का डिफरेंट प्रॉब्लम कराने का ऑब्जेक्टिव बस यही है कि जैसी इंफॉर्मेशन आपको दी हो उसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए इस प्रॉब्लम में सैलरी 50,000 पेड किया, सैलरी इंक्लूड 24,000 पेड टू डायरेक्टर, देयर वर 3 एम्प्लॉय बिफोर इनकॉर्पोरेशन एंड आफ्टर 5। अब इस क्वेश्चन में देखिए कैसे करेंगे। डायरेक्टर सैलरी क्या होती है, रिलेटेड टू कंपनी। डायरेक्टर सैलरी को हम पोस्ट में कर देंगे, और बाकी बची हुई सैलरी को हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट इज 3:10। और एलोकेशन हम क्या करेंगे, डायरेक्टर सैलरी जो मेरी 24,000 है वो पोस्ट में चली जाएगी, क्योंकि डायरेक्टर कंपनी में होता। डायरेक्टर सैलरी रिलेटेड टू कंपनी है तो पोस्ट में चला जाएगा। और 50,000 में से 26 हटा दीजिए तो 26,000 सैलरी बची, जिसको हम 3:10 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये इसमें भी सैलरी 30,000 पेड किया, देयर वर 3 एम्प्लॉय बिफोर इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर 5 द सैलरी 500 बिफोर इनकॉर्पोरेशन एंड 600 आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो इसमें भी आप कैलकुलेशन कर सकते, 4 मंथ, 8 मंथ, 3 एम्प्लॉय, 5 एम्प्लॉय, 500 एंड 600।
अब ये जो तीनों रेशियो मिला है, तीनों को आप ज्वाइंट करेंगे तो 15 and 16 मींस ये 1:4 आया, और टोटल सैलरी 30,000 को आप 1:4 में डिवाइड कर देंगे, दैट इज 1/5 4/5। या आप डायरेक्ट ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि 4 month 3 इम्प्लाई 500, 4 3s are 12 into 5 6,000। डायरेक्ट भी आप मैथ के कैलकुलेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम देखिए, इसमें मिस्टर एक्स who was manager earlier now director of Vikas Limited, manager salary 20,000, director fees 50, allocate। इस प्रॉब्लम में टेक्निकल वर्ड छुपा है, आप उसको समझने की कोशिश करिए कि मिस्टर एक्स जो मैनेजर थे बाद में डायरेक्टर उनको बना दिया गया, मैनेजर सैलरी प्री में जाएगी 50,000 पोस्ट। अब आपको ये देखना है कि जो मैनेजर था वही बाद में डायरेक्टर बन गया, तो मैनेजर सैलरी पोस्ट में नहीं जाएगी, और जो डायरेक्टर था वो पहले मैनेजर था, इसलिए ये एलोकेशन आप प्री पोस्ट में नील करके करें। अब ये फाइनल क्वेश्चन है मेरा, इसमें आपको टाइम और सेल्स दोनों कैलकुलेट करना है, और फिर उसके बाद सारे एक्सपेंसेज हैं उनको डिवाइड करना है। कैलकुलेशन करने का प्रोसेस, सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फिर सेल्स रेशियो कैलकुलेट करेंगे, आपका टाइम रेशियो आ गया, सेल्स रेशियो आ गया, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आप ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट देखिए 3 लाख, तो उसको आप सेल्स रेशियो जो आपका है दैट इज 1:4 सेल्स रेशियो, उसमें आपने इसको डिवाइड कर दिया, और फिर नेक्स्ट लेस सैलरी, सैलरी आपकी 40,000 गिवन है क्वेश्चन में, तो उसको टाइम रेशियो 1:3 में डिवाइड कर दिया गया। फिर डायरेक्टर फीस, हमें मालूम है कि डायरेक्टर कंपनी में होता, तो इसलिए डायरेक्टर फीस को हमने केवल पोस्ट में रखा। देन कमीशन, कमीशन सेल्स रेशियो वेरिएबल एक्सपेंसेज है, तो सेल्स रेशियो में डिवाइड कर दिया, सेल्स रेशियो 1:4। आफ्टर दैट एडवर्टीजमेंट, वो भी वेरिएबल एक्सपेंसेज है, उसको भी हमने सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:4। आफ्टर दैट ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:3। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कंपनी से रिलेटेड होता है, पोस्ट चला गया, और सारे एक्सपेंस करने के बाद आप टोटल नेट प्रॉफिट आप निकाले, टोटल आपका ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें सारे एक्सपेंसेस को ऐड करके लेस कर दिए, नेट प्रॉफिट आ गया। फिर आपने प्री प्रॉफिट निकाला, प्री ग्रॉस प्रॉफिट में से प्री एक्सपेंसेस को लेस करके, और फिर उसके बाद पोस्ट प्रॉफिट कैलकुलेट किया। अब इस कैलकुलेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि टोटल प्रॉफिट जो आपका था उसमें से 43,000 प्री प्रॉफिट यानी कैपिटल नेचर का है, तो इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। फिर इसका यूज हम गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए करेंगे, और ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है उसको हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम आएगा। इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वन एंड ऑल फॉर पेशेंस लिसनिंग।